मैम Shivesh is laughing. Shivesh is मैम तब तक गवर्नमेंट हो जाएगा. Shivesh is enjoying the situation. Good afternoon, children. Let us continue with the lesson. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Listen, children, we were covering the 7th lesson of civics, and today we will cover the topic ward counselor and the administrative staff. We have seen that the chapter begins with children playing cricket in the street, and they have broken the street light, and they were very much confused to whom to pay the money for repairment of the street light. Okay, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सड़क पे, और उनसे जो है गलती से जो है रेहाना की वजह से जो है स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गया है. ठीक है ना. अब वो परेशान है कि ये स्ट्रीट लाइट कैसे रिपेयर होगा और किसको हम पैसे देंगे ताकि वो रिपेयर हो जाएगा. तो इन क्वेश्चंस को लेके वो लोग जो है अपनी रेहाना की जो मदर है, उनकी फ्रेंड है यास्मीन खाला, उनके पास जाते हैं लोग बच्चे सारे मिलके, और वहां पे पता करने की कोशिश करते हैं कि इन सब की देखभाल जो है वो कौन करता है. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन द स्ट्रीट लाइट्स. ओके, नाउ सी द वार्ड काउंसलर and the administrative staff. Yasmin Khala, I am curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this? We have done this, okay? And we know that Yasmin Khala, when she was working, okay, in the municipal corporation, she was working in the accounts department, and her task was to Shivesh, unmute करो खुद को. शिवेश, बेटा यास्मीन खाला क्या करती थी जब वो कॉर्पोरेशन में काम करती थी? What task was performed by यास्मीन खाला? हाँ, यास्मीन खाला, she worked in the accounts department. ठीक है ना. हाँ, she worked in the accounts department. और वो क्या काम करती थी बेटा? मैम हाँ बोलो. हाँ मैम शी प्रिपेयर पे स्लिप्स. मैम आप शिवेश से पूछिए ना. यस, ये श्रेया की आदत खराब हो गई है बीच में बोलने की. नो मैम मैं अभी ज्वाइन हुई थी तो मुझे लगा आप सबसे पूछिए. हाँ ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा. ठीक है ना. आई वाज आस्किंग Sivesh. Good afternoon, ma'am. Sivesh was making fun of Shivangi, so I was asking him. Okay, ठीक है ना. और उनको जो है अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ मैम पूछ रही हैं. ठीक है. Sivesh, lesson 7 of civics. Okay. पता है civics का lesson 7 पेज नंबर 58. चलो ठीक है. आपके पास तो नई बुक थी ना, तो पुरानी बुक के पेज नंबर क्यों बता रहे हो शिवेश? मैम नई बुक नहीं है. अच्छा चलो ठीक है. ओके, यू कीप चेंजिंग. मैम चेंज हुई है civics बुक. नहीं बेटा, यू कीप चेंजिंग योर स्टेटमेंट. चलो, सी the city is divided into different wards and ward councillors get elected. The complicated decisions that affect the entire city was taken by group of councillors, okay, who form committees to decide and debate issues. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, and I gave you the illustration of one of the municipal corporation, that is सिलीगुड़ी municipal corporation. ठीक है ना. मैंने आपको इलस्ट्रेशन में बताया था कि अगर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम 49 वार्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और 49 वार्ड्स के लिए 49 वार्ड काउंसलर्स लेते हैं, और उसके बाद उनको जो है हम अलग अलग कमेटियों में बांध देते हैं. ठीक है ना. कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. तो हम देखते हैं कि एक कमेटी को लगभग, किसी कमेटी को 5 काउंसलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को 6 कर रहे हैं. श्रेया एक जगह बैठ जाओ और बैठ के क्लास करो, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी. You are roaming here and there. Okay, sit and attend the class. Have a look, children. See, for example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace, okay, needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. I told you people to mark this sentence, the last 2 sentences. Okay.
When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. Underline this part. Okay. जब कभी भी वार्ड में समस्या होती है तो हम अपने वार्ड काउंसलर के पास जा सकते हैं और जाके उनसे ओके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और वो उनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रॉब्लम्स के ओके सॉल्यूशन ढूंढना. अंबुज, अंबुज. यस मैम. बेटा वार्ड काउंसलर को Yes, हिंदी में ma'am. वार्ड काउंसलर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पार्षद. गुड. ओके, वार्ड के पार्षद. ठीक है ना? ओके, पार्षद कहते हैं. देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच ओके विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ठीक है ना? अब मान लो बारिश का मौसम है और जहां तहां जो है बिजली के तार जो है नंगे गिरे पड़े हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो है जो आम जनता है वो अपने पार्षद के पास जाएगी और पार्षद से अपनी समस्या को डिस्कस करेगी. ओके, और पार्षद जो है वो उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे. कैसे? जो विद्युत विभाग है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके साथ वो संपर्क स्थापित करेंगे और जो उस विभाग के कर्मचारी हैं उनको कहेंगे कि जाइए और जाके इस चीज को सॉर्ट आउट करिए. अगर तार नीचे खुले में पड़े हुए हैं तो उनको आप फिक्स करिए ताकि जो आम जनता है उसको परेशानी ना हो. Okay, you know that if the electricity wires they are remaining naked, okay, अगर ऐसे ही जो है वो खुले पड़े हैं तो बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक करंट जो है स्प्रेड कर सकता है और कैजुअलिटीज हो सकती हैं. पीपल में डाई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, so see, while the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement this. Administrative staff का मतलब होता है प्रशासनिक कर्मचारी. ओके, ठीक है ना, जो प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखते हैं, ओके, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हैं. ठीक है ना? जैसे पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है. ओके, ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है तो पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, okay, officials of the department, okay, they will be called what? Our administrative staff. ठीक है ना? तो ये जो है प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनकी कैटेगरी में जो है ये लोग आएंगे. ठीक है ना? उसी प्रकार बिजली विभाग, ठीक है, जल विभाग और भी जितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है ना, जो लोग उसमें काम करते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कह सकते हैं. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड. ओके, काउंसलर्स आर इलेक्टेड. अंडरलाइन दिस पार्ट. इस चीज को आपको अंडरलाइन करना होगा. ठीक है ना? अब ये जो कर्मचारी लोग होते हैं, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, ओके, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हो गए, इनकी नियुक्ति की जाती है. नियुक्ति मतलब क्या? ओके, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हेल्ड कराए जाते हैं. प्रतियोगिताएं, ओके, प्रतिस्पर्धा जो है कराई जाती है. ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं और इनको उस एग्जाम्स में बैठने होते हैं और उनको क्लियर करना होता है. तब जाके जो है ये ओके दे कैन बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. बट एज मैम आप कहीं कि एग्जाम में बैठना होता है और क्लियर करना होता है, इसका मतलब क्या? क्या बेटा? मैम बोलिए ना, उनको एग्जाम में बैठना क्लियर है. हाँ बेटा, ठीक है ना? क्या एग्जाम में मतलब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रिशियन के पद पे अगर नियुक्त होना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं ना, सरकार जो है समय समय पे एग्जाम्स करवाते रहती है. ठीक है, आपको जो है उस एग्जाम में बैठना होगा और उसको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप इलेक्ट्रिशियन बन पाएंगे. आपके पास ओके, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है डिग्री है, यू हैव डन द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल यू कैन नॉट बी एन अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन. Okay, as an electrician in government department, you'll have to sit for the exams, you'll have to clear them and only then. ठीक है ना? Okay, IAS, PCS जितने भी हमारे देश में लोग होते हैं, ये जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, इनको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चुना जाता है. ओके,
लेकिन जो पार्षद होते हैं इनको आम जनता चुनती है, ठीक है ना, इनको जो है आम जनता चुनती है और इनके लिए जो है चुनाव कराए जाते हैं। ओके, Yes, तो यू विल हैव टू रिमेम्बर। ओके, वोट देगी तो वो होगा। हाँ, जनता जब वोट देगी तब होता है। ओके, एंड ओके, इलेक्शंस टू द वार्ड, elections to the ward are conducted, okay, are held every 5 years, ठीक है ना, हर 5 वर्ष पे जो है ओके चुनाव कराए जाते हैं पार्षदों को चुनने के लिए। अब ये बताओ 5 वर्ष पे ही क्यों कराए जाते हैं? हाँ, मान लो अगर मैं पार्षद चुनी गई, ओके, मैं एक वार्ड की पार्षद चुनी गई, तो कोई जरूरी है कि मेरे बाद दूसरे व्यक्ति को चुनना जरूरी है? या फिर मैं अगर चुनी गई हूँ तो 5 साल बाद मुझे दोबारा चुनाव में क्यों उठना पड़ेगा? 5 साल के लिए क्यों चुनाव किया जाता है? मोदी जी 5 साल के लिए लिमिटेड है। सुनो, प्राइम मिनिस्टर हमारे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, सीएम 5 साल के लिए चुने जाते हैं, क्यों? Why there is provision for 5 years? Why not more than that? Why not more for lifetime? बताओ। शिवेश will tell me the answer. I know. शिवेश की जो है ओके ठीक है ना, अचानक से शिवेश they do not misuse their power. Okay, so that they do not misuse their power, and our country is a democracy. हमारा देश में देश जो है एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। ओके, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है पीएम बनने का, सीएम बनने का। ओके, तो अगर हम किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए चुन लेंगे, अगर किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए पीएम बना देंगे, तो दूसरे व्यक्ति को चांस कैसे मिलेगा? ठीक है ना, so that everyone gets a representation in the okay affairs of the country, in the decision making process. The okay, there is election for 5 years, and this election is for 5 years because okay the people who are elected, they cannot misuse their power. Okay, is it clear now? याद रहेगा सबको? Okay, याद रहेगा। Yes, ma'am. okay, मैम हाँ, मैम अगर वो वही जो पहले का है मैम, जैसे मैम स्टेट गवर्नमेंट होती है, बिहार में चुनाव हुआ है तो मैम पहले भी नीतीश कुमार मैम वहाँ के सीएम थे मैम, अभी भी वही है। अभी भी वही है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आम जनता चाहती है कि वही रूल करे, ठीक है ना। ओके, आम जनता ने उनको ये अधिकार दिया है। ओके, आम जनता ने उनको अधिकार दिया है। ओके, वो अपने आप तो सीएम नहीं ना बने हैं। नीतीश कुमार जो है पहले भी थे। आप अपने देश में देखेंगे ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं जो 25-25 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। They have been okay the chief minister for 5 consecutive terms. अभी आप देख सकते हैं जो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, वो भी he is the longest serving minister of our country and chief minister. And you see okay this person I'm मैम वो forgetting his कितने सालों तक मैम सीएम रहे हैं? for more than 5 consecutive terms, 25 years. ठीक है ना, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम राइट नाउ। ओके, देन ये जो आंध्र प्रदेश के हैं, ओके, चंद्रबाबू नायडू, ही इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आप पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे ज्योति बासु, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 25 years. ओके, ठीक है शिवेश, तो ये हाँ, तो ये आम जनता होती है जो उनको चांस देती है। ओके, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चुनाव होते हैं उनको चांस दिया जाता है कि दोबारा वो जो है एज जो है सीएम रिप्रेजेंट करे। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। सो वी नो दैट द ओके वार्ड काउंसलर इज इलेक्टेड whereas the administrative staff is appointed. ये पहला डिफरेंस हमें पता चला है। ओके, as far as our study is concerned. Now let us proceed further. So how are these decisions made? Ask Rehana, who never gave up on her train of thought. Okay, we have Shreya who never gives up. She always asks question. Okay,
Well, all of the ward counselor, okay, meet and they make a budget and the money is spent according to this. Now, what is a budget? Budget से हम क्या समझते हैं? शिवेश, budget? हाँ? मैम बजट What is a budget? हाँ? It is a financial plan. Okay, it is a financial plan for a defined period. ठीक है ना? Defined period, okay, of 1 year. ठीक है ना? बजट जो होता है, ओके, एक साल के लिए होता है, ओके. फिनेंशियल ईयर हम इसको कहते हैं. हमारा फिनेंशियल ईयर जो है मार्च से शुरू होता है, ओके, और अगले अप्रैल से शुरू होता है, सॉरी, ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड इट विल एंड इन मार्च. ठीक है ना? तो आप देखते हैं आपका स्कूल जो होता है, आपका स्कूल अप्रैल में स्टार्ट होता है ना. आपका स्कूल जब भी आप ज्वाइन करते हो नए क्लास में, आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है ना स्कूल. यस मैम. हाँ, और मार्च में आप देखते हैं कि Yes, मार्च में आपका सेशन जो है वो एंड हो जाता है. सो द यस टाइम, मैम, एग्जाम खत्म हो हाँ, जाता है. ठीक है ना. सो फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ओके, इट इज कॉल्ड द फिनेंशियल ईयर. ठीक है ना? ये जो समय होता है अप्रैल से मार्च के बीच का जो समय होता है, इसको हम फिनेंशियल ईयर कहते हैं. ओके, एंड एज फार एज, कितने दिन हम उस क्लास में रहे जितने साल तक? हाँ हाँ, नहीं बेटा शिवेश, जितने साल तक मत जाओ. मान लो अगर आप डिटेन हो गए तो 2 साल रह गए तो 2 साल नहीं ना होगा. हाँ, it is an estimate of, listen children, it is an estimate of revenue and expenses. ठीक है ना? तो एक साल में, ओके, एक साल में सरकार को जो है किन किन क्षेत्रों से कितनी आमदनी होनी है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे. और एक साल के अंदर सरकार को जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसके ऊपर उसे कितना खर्च करना होगा उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं. ठीक है ना? सो इट इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, बजट जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं. मुख्यतः 3 प्रकार के बजट होते हैं. आप देखते होंगे कि आपके जब भी आप न्यूज सुनते हैं तो आप सुनते होंगे कि सरकार ने जो है, ओके, रेलवे बजट प्रस्तुत किया. ठीक है ना? आम बजट प्रस्तुत किया. हाँ, आप देखते हैं ना. हु प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट? शिवांगी, यस मैम. हु प्रेजेंट्स? हमारी सरकार में इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, किस मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है बजट को प्रेजेंट करना? जो आम बजट होता है, ओके, जो नॉर्मल बजट होता है, जो फिनेंशियल बजट होता है. मैम फिनेंशियल मिनिस्टर. इट इज द फिनेंस मिनिस्टर. फिनेंशियल नहीं, फिनेंस मिनिस्टर. हु इज द फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली? नाउ देयर इज अ ट्विस्ट. सुब्रमण्यम जय. सुब्रमण्यम? हाँ? नो मैम. Who will tell me the answer? किसे पता है? हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण. Yes, good, good, good. This is okay, okay, Shivesh. So we see that the finance minister, okay, the finance minister presents the budget. Okay, he presents the budget in the पार्लियामेंट. ठीक है ना? ओके, पार्लियामेंट जो हमारा संसद भवन है उसमें जो है, ओके, इनकी जिम्मेदारी होती है जो बजट होता है उसको प्रस्तुत करना और मैम, आम जनता को अवगत कराना कि उसमें क्या है क्या नहीं है. बोलो श्रेया. मैम मुझे मैम पूछना था कि मैम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैम एक बार फिर से बता दीजिए. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम. ठीक है ना? रेवेन्यू का मतलब होता है, ओके, एक रेवेन्यू आपका जो है लगान होता है. जो आपको मैंने बताया था पटवारी का कार्य क्या होता है? पटवारी जो है, जो गांव के जो किसान होते हैं उनसे लगान वसूल के सरकार को देते हैं. ठीक है ना? ओके, उनके खेतों में जो जो फसल उगाते हैं वो लोग, ओके, तो उन फसलों की रखवाली के लिए जो है उनको सरकार को कुछ पेमेंट करना होता है. ओके, लगान देना होता है. तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. एक रेवेन्यू होता है इनकम. ओके, अब मान लो सरकार जो है,
ठीक है ना। सरकार जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपसे रेवेन्यू के रूप में क्या लेती है? द गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स फ्रॉम यू, टैक्स ले रही है ना। हाँ, टैक्स Yes, ऑन ma'am, वाटर, टैक्स ऑन वाटर सप्लाई, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टैक्स ऑन हाउसिंग। ओके, तो ये क्या हो गया? ये सारे टैक्स जो सरकार आपसे ले रही है वो रेवेन्यू हो गया, वो सरकार का इनकम हो गया। ठीक है ना, सरकार की आमदनी हो गई जो सरकार को सालाना मिल रही है। अब सरकार को जो है आपको, आपसे सरकार टैक्स ले रही है तो सरकार को आपको सुविधाएं भी देनी होंगी। ठीक है ना, सरकार को आपको सुविधाएं देनी होंगी ना। हाँ, अब मान लो बिजली का तो बिल मैं बहुत। हमारा पैसा सुविधा में यूज हो जाता है। हाँ बेटा, मैम जो हम लोग से टैक्स लेती है तो मैं वो मनी कहाँ जाता होगा? वो सरकार के ट्रेजरी में रहता है बेटा, सरकार की ट्रेजरी में रहता है और सरकार उस पैसे को यूटिलाइज करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी तरक्की के लिए। ठीक है ना। ओके, अब मान लो कोई गांव है जहाँ पे पानी की कमी है तो सरकार क्या करेगी? वहां पे पानी की सप्लाई देगी। ठीक है ना, ताकि उस पानी की कमी को जो है दूर किया जा सके। अब मान लो कोई जगह है जहाँ पे जो बिजली है वो रात में रहती है, दिन में गायब रहती है। ठीक है ना, तो सरकार जो है वो अरेंजमेंट करेगी कि ओके, आउट ऑफ 24 आवर्स कम से कम 18 घंटे लोगों को बिजली मिल सके। ठीक है ना, तो ये सारे कार्य जो सरकार कर रही है डेवलपमेंटल वर्क्स, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ओके, ये रेवेन्यू वाला पैसा जो है वो उसको यूटिलाइज करेगी। तो मान लो ओके, सरकार को जो है, आप मान लो उसको जो है नॉर्मल, ओके एग्जाम्पल में दे रही हूँ, 10,000 सरकार को टैक्स से मिल रहा है। ओके, और सरकार का जो खर्च है वो हो जा रहा है 7,000। ओके, दिस इज द रेवेन्यू एंड दिस इज द एक्सपेंस। ठीक है ना, और ये कितना है? ओके, इट इज फ्रॉम अप्रैल, ओके, अप्रैल 20 टू मार्च 21। ठीक है ना, तो अब सरकार के एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सरकार के पास कितना पैसा बचेगा? सरकार के पास 3,000 रुपए बचेंगे। ओके, सरकार के पास 3,000 बचेंगे 2021 में। ओके, अब सरकार जब दूसरा बजट तैयार करेगी दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 टू 2022, तो उसके पास ये एक्स्ट्रा मनी रहेगी। ठीक है, अंडरस्टूड? जो उसको रेवेन्यू Yes, sir. मिलने वाला है। ओके, सो इट विल बी एडेड टू दैट। अब कई बार क्या होता है, डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए ज्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है ना। Yes, sir. ओके, मान लो 13,000 हो गया तो जैसे सरकार अभी सरकार में मैं माइनस में बताया चल रही है, सरकार को जो है डेफिसिट हो जाता है। ठीक है ना, घाटा हो जाता है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है चीजों का दाम बढ़ा दे, आपसे ज्यादा टैक्स ले, पेट्रोल के दाम Yes, बढ़ा sir. दे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसको तो ये डेफिसिट जो हुआ है इसको कवर करना है। ठीक है ना, ये जो लॉस हुआ है 3,000 का, इसको तो उसको कवर करना है ना। ओके, सो इट विल ट्राई टू मेंटेन दिस लॉस। ओके, जब आप कॉमर्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, समझो। मैम आप एक्सपेंसेस एक बार बता दीजिए, आपने बताई। शिवांगी, दिस इज द एक्सपेंस जो खर्च करते हैं हम। ठीक है ना, जो हम खर्चा करते हैं। ओके, मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास 500 रुपए है। ठीक है, आपकी मदर ने आपको 500 रुपीज दिया, 500 रुपीज में जो है आपने 300 रुपीज खर्च कर दिया। ओके, 300 रुपीज के आपने सामान खरीद लिए, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। Okay, the money spent on developmental works, that will be the expense. Okay, and the money that you are taking from the public, that is your revenue. Understood? Understood now? Clear? यस मैम, यस मैम। Okay. मैम, हाँ, मैम मुझे एक डाउट है। बोलो। मैम आपने बताया कि अगर गवर्नमेंट का लॉस होगा तो वो चीजों के दाम बढ़ा देगी, और मैम प्रॉफिट होगा तो वो चीजों के दाम कम कर देगी। क्यों कम करेगी? क्यों कम करेगी? आपको और अच्छी सेवाएं देगी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आम जनता को कोई आपत्ति नहीं है चीजों का दाम देने में। अभी आप देख रहे हो, हाँ, अभी आप देख रहे हो पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? हाँ, पब्लिक इज टेल मी। नो मैम। पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है? नहीं कर रही है ना। नो मैम। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओके रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। ओके, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। और एट टाइम्स क्या होता है, अगर ज्यादा हाँ, एट टाइम मैम जो
सुनो, एट टाइम्स जब चुनाव आने वाले होते हैं ना, तो सरकार जो है अपनी पॉलिसीज में जो है नमी बरतती है, ठीक है ना, ओके, लीनियंसी लाती है, ओके, वोट लेने के लिए। हाँ, वोट लेने के लिए जो है वो चीजों के दाम कम भी कर सकती है। अभी आप देख रहे हो मार्केट में, अपनी मम्मी से पूछना अभी प्याज का दाम कितना हो गया है, 80 रुपीज, कुछ कुछ जगहों में 80 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। द ऑनियन इज बीइंग सोल्ड एट 80 रुपीज, आलू का दाम 40 रुपीज पर केजी हो गया है, ओके, बट nobody is protesting, public is not protesting, so the government is not reducing the price, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, ओके। Yes, ma'am. Now see children, well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff. Okay, said Yasmin Khala, enjoying the questions. Okay, ठीक है ना। तो यास्मीन खाला से बच्चे एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, देखो। In a panchayat, the elected members are called what? What are the elected members called? Ma'am, Punch. punch. Ma'am, punch. Okay. So number one answer. Ma'am, punch. Punch. Okay. PANCH. Pencil से वहीं पे लिखते जाओ आप लोग. The city is divided into several Wards. Ward. Ward. ठीक है ना? Ma'am, It is wards. wards. Now the third one. In a municipal corporation, the elected members are called Ward councillor. Ward councillor. Ward councillor. they are called councillors, ठीक है ना। आप वार्ड काउंसलर भी लिख सकते हो, ओके। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स, ओके, वार्ड काउंसलर्स, ठीक है ना। वार्ड काउंसलर ही लिख लेते हैं, नहीं तो अभी शिवेश को दिक्कत होने लगेगी, ओके। नाउ नंबर 4, ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द City. एंटायर सिटी, ठीक है ना। Entire city. ओके, पूरे शहर से संबंधित समस्याओं को वो लोग डील करते हैं, ओके। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश इयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर म्युनिसिपैलिटी। Five. और अभी 5 years. अभी सबको पता चल गया ना कि 5 साल के लिए क्यों चुना जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner, what they do? हम एक्शन लेते हैं. इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट दिस, ओके, दे इम्प्लीमेंट दिस, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं, ठीक है ना। काउंसलर्स जो है वो सारे फैसले लेते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं, वो उसको लागू करते हैं, उसको कार्यरत करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो जो हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ठीक है ना। नितिन गडकरी जो है वो हमारे क्या है, ओके, ही इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री है, ठीक है ना। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई फैसला लेंगे तो उसको कौन कार्यरत करेगा, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके जो कर्मचारी हैं वो उसको करेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ सी हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं ये हमें पता है, ओके। देखो, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ओके। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वे. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. Underline it. Underline this part. Tax से आप क्या समझते हो? Tax से आप क्या समझते हो? देखो, a tax is a sum of money. टैक्स वो पैसा है, वो रकम है जो आम जनता देती है सरकार को सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, ओके, ठीक है ना। See, people who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services. Okay? The larger the house, the more the tax. Property taxes, however, form only 25% to 30% of the money, okay, that a municipal corporation earns. There are also taxes for education, okay, and other amenities. Amenities matlab services. The word amenities means services. Okay?
If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. अगर आपके पास खुद का कोई दुकान है या आप किसी होटल के मालिक हैं, तो आपको उसके लिए भी जो है सरकार को टैक्स देना पड़ेगा. ओके, ठीक है ना? Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. जब आप मूवी देखने जाते हैं, आप कौन सा टैक्स पे करते हैं? Can you name that tax? मूवी जो है आपका मनोरंजन करता है, ठीक है ना? जो चलचित्र होते हैं, सिनेमा होते हैं, वो आपके जो है ओके एंजॉयमेंट के लिए होता है. तो कौन सा टैक्स देते हो आप? हाँ, यू पे एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है ना? जो मूवी के जो टिकट्स होते हैं वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं ना, आपको एंजॉय करा रहे हैं ना, हाँ, आपकी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, ठीक है ना? Have a look, children. Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general tax. Okay? तो मान लो ये एक पाई चार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं क्या 25% जो है प्रॉपर्टी टैक्स है. ओके, और ये जो 75% है ये अदर टैक्स हो गया, ठीक है ना? अदर टैक्स हो गया. अब अदर टैक्स में क्या आएगा? अदर टैक्स में सारी चीजें आ जाएंगी. एजुकेशन टैक्स आ जाएगा, ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाएगा, ओके, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ऑल द अदर टैक्सेस विल कम. तो हम देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं समाज के, वो खाली 25% टैक्स देते हैं, ठीक है ना? जो टैक्स सरकार को मिलता है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ओनली 25% होता है. रेस्ट 75% इज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, वो आम जनता देती है, ठीक है ना? आप जब बस से ट्रैवल करते हो, आप जब रोड ट्रांसपोर्ट लेते हो, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जब आप लेते हो, तो उसमें जो टिकट मिलती है आपको, ठीक है ना, ट्रैवल टिकट जो मिलती है उसमें भी टैक्स इम्पोज रहता है. ओके, जो फेयर होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है. ओके, आप सामान खरीदने जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो तो आप जीएसटी दे रहे हो ना? व्हाट इज जीएसटी? Yes, ma'am. व्हाट इज Good जीएसटी? service tax. इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसके पहले क्या था? बीजेपी की सरकार ने जीएसटी को लागू किया है, इसके पहले कौन सा टैक्स था? शिवांगी विल टेल मी. ये जो आपका जीएसटी है ये फिक्स नहीं है. ओके, इट इज नॉट फिक्स, बट द वैट, ओके, ये फिक्स था. जीएसटी के पहले जो है आपका वैट था. ओके, शिवेश क्या होगा? मैम तो इसमें जो दाम फिक्स रहता है वही रहता है. ना बेटा, जो गुड्स होते थे ना उसके ऊपर अलग से जो है 12.5% आपको टैक्स देना पड़ता था. दैट वाज वैट. ओके, वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, मैम मतलब उसमें वो फिक्स रहता था, वो बदलता नहीं था. नो, इट वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. सारे राज्यों में जो है ये लगभग तय था कि 12.5% टैक्स आपको देना है. बीट द व्हेन यू आर बाइंग मेडिसिन, जब आप दवा खरीद रहे हैं तो ओके, तो टोटल अमाउंट जो हो रहा है दवा का उसके ऊपर 12.5% आपको टैक्स देना है, ठीक है ना? कोई गुड्स खरीद रहे हैं उसके ऊपर देना पड़ता था. ये लगभग जो है फिक्स था. ओके, हर जगह. जीएसटी से ये पहले था वीएटी. यस बेटा, जीएसटी से पहले था. एंड मैम ये कौन सी सरकार लागू की थी? The government that was there previously, UPA. Now you'll ask me what is the full form of UPA. यस मैम. UPA किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. Now this is your homework. I am giving Shivangi a homework. Full form of UPA and NDA. UPA और Okay, NDA ma'am. का फुल फॉर्म निकालिए. शिवेश पता करके बता देंगे, मुझे पता है. नो मैम, मैं भी बता दूंगी. अभी बताओ. अभी नहीं मैम. इट इज हाँ, हम कुछ बताओ.
एनडीए